Hello friends, welcome back to my YouTube channel, The Noble Teaching. As you all know that we are going through the chapter number 6, that is tissues. And in the previous video, we have completed our topic that is known as simple permanent tissue. Today, we are going to talk about complex permanent tissue. In this video, we will talk about complex permanent tissue. So let's see what is complex permanent tissue. Complex tissue are made up of more than one type of cells. Complex tissues are made up of more than one types of cells. मतलब complex tissue जो बने होंगे वो एक से ज़्यादा types of cells से बने होंगे. They coordinate each other and perform a specific function. The different types of cells coordinate with each other and they perform a particular or a specific function. Right? Complex permanent tissue clear हो गया आपको. उसके बाद अब आपको स्टार्ट करना है complex permanent tissue, तो आपको फर्स्ट पॉइंट यही लिखना पड़ेगा. क्या लिखोगे आप? Complex tissue are made up of more than one type. ये टाइप वर्ड आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है. मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. दे कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होंगे वो कोऑर्डिनेशन के साथ सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे. उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? Types of complex permanent tissue will be, first one is xylem and second one is phloem. As in the previous video I have told you complex permanent tissue are of two types. First one is xylem and second one is phloem. Okay, first one is xylem and second one is phloem. Now let us study about some characteristics of xylem. अब आपको पता होना चाहिए कि जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है. जाइलम सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है. तो अब जाइलम की बात करते हैं हम. सेल्स हैव थिक वॉल्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड सेल्स. अब जाइलम के सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? दे हैव थिक वॉल्स. उनके पास थिक वॉल्स होगी. राइट, दे हैव थिक वॉल्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड सेल्स. वो बहुत ही सारे मतलब मोस्ट ऑफ सेल्स आर डेड इन जाइलम. सो लेट अस स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम. देयर आर मेनली 4 components of xylem. First one is tracheids, second one is vessels, third one is xylem parenchyma and fourth one is xylem fibers. कितने कंपोनेंट्स है जाइलम के? देयर आर मेनली 4 components of xylem. First one is tracheids, second one is vessels, third one is xylem parenchyma and fourth one is xylem fibers. Right? So let us study about tracheids. Tracheids का कैसा स्ट्रक्चर होगा? There will be a tubular structure of tracheids. Tubular structure of tracheids. बट यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट, यहाँ पर हम वेसल्स भी पढ़ेंगे. वेसल्स में भी सेम ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है. कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है. यहाँ पर भी ट्रैकियड्स में भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, वेसल्स में भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर. सो डिफरेंस क्या है? यहाँ पर मैंने आपके लिए फिगर ड्रॉ की हुई है. ये देखते हैं बहुत सारे सेल से बना हुआ है ये ट्रैकियड्स. और यहाँ पर है जो ये जो हमारे प्रेजेंट है दैट इज नोन एज वेसल्स. राइट, अब ट्रैकियड्स में आपको एक पॉइंट दीजिए. यहाँ पर जो एंड होंगे उसके ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर तो होगा ही उसका, पर यहाँ पर जो एंड प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे? दे विल बी पॉइंटेड. कैसे होंगे वो? पॉइंटेड होंगे. बोथ द एंड्स ऑफ द ट्रैकियड वेसल्स ट्रैकियड्स विल बी pointed, while in the vessels में क्या होगा? Vessels have tubular structure. Vessels also have tubular structure, but the ends are not pointed. Tracheids में क्या था? The ends are pointed, but in the vessels the ends are not pointed. They are round, just like semi-cylinder in shape. दे आर राउंड. जैसे ये राउंड फॉर्म करेगा तो आपको पता होगा ऐसा कोई स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज सेमी सिलेंडर इन शेप. पता चल गया आपको?
Tracheids vessels both have tubular structure, but in tracheids the ends are pointed. But in vessels the ends are not pointed but they are round, right? Now let's start to our third, our component of our third xylem, that is known as xylem parenchyma. What? That is known as xylem parenchyma. अब xylem parenchyma के functions के बारे में पढ़ते हैं. This stores food. क्या करेगा xylem parenchyma? Xylem parenchyma will store food. Then helps in sideways conduction of water. वाटर के कंडक्शन में sideways conduction of water. They form sideways conduction of water. These both are the function of xylem parenchyma, right? Stores food, first one is, and second one is helps in sideways conduction of water. Now moving to our last component of xylem, that is known as xylem fibers. What? Xylem fibers. They are supportive in function. जो xylem का function है उसमें क्या करेंगे? सिर्फ they will support xylem. That are known as xylem fibers. तो हमने क्या पढ़ा? 4 components of xylem: tracheids, vessels, xylem parenchyma and fourth one is xylem fibers. अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये चारों में से सिर्फ एक ऐसा xylem parenchyma, सिर्फ एक ऐसा कंपोनेंट है that is living. अदर्स आर, जो ट्रैकियार्ड्स है, वेसल्स है और जाइलम फाइबर्स है, दे आर डेड, बट ओनली जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग. ओके फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है. क्या क्वेश्चन आ सकता है? नेम द सेल्स इन द जाइलम विच आर लिविंग. तो उसका आंसर क्या होगा? दे आर जाइलम parenchyma. And the name the cells in the xylem which are dead. तो उसके 3 आंसर्स होंगे. फर्स्ट वन इज tracheids, सेकंड वन इज vessels एंड थर्ड वन इज xylem fibers. ओके, तो आपको ये xylem, उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया. मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज नोन एज फ्लोएम. फ्लोएम किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड मिनरल्स. तो हम बात करते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स इन बोथ डायरेक्शन. यहाँ पर यूनि डायरेक्शनल होगा, यहाँ पर फ्लोएम कैसे ट्रांसफर करेगा? बोथ डायरेक्शन, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा प्लांट्स में, राइट? हम प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं, राइट? तो उसमें फ्लोएम की बात कर रहे हैं हम. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स इन बोथ द डायरेक्शन, राइट? जैसे ही हमने जाइलम के 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पर भी फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स है. तो आप चलिए देखते हैं. फर्स्ट वन इज सीव ट्यूब. Sieve tube. They are tubular cells having perforated wall. They are tubular cells having perforated walls. तो अब चलिए sieve tube की थोड़ी फिगर देख लेते हैं हम. ये ड्रॉ किया हमने, राइट? यहाँ पर द वॉल परफोरेटेड वॉल्स. तो ये परफोरेटेड वॉल्स का मतलब क्या होगा? वॉल्स एंडिंग के अंदर यहाँ पर हमें परफोरेटेड मतलब जिसके ऐसी चीज़ जिसके अंदर बहुत सारे होल्स प्रेजेंट हो. तो ये हमारा क्या होगा? ये जो सेक्शन है दैट इज नोन एज सीव ट्यूब. क्या है वो? ST, सीव ट्यूब. बट हम ये जो परफोरेटेड ऐसी बनाएंगे, एंडिंग में जो परफोरेटेड वॉल्स होगी, हम जो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे? दैट विल फॉर्म सीव प्लेट्स. क्या बनाएगी वो? सीव प्लेट्स, राइट? तो हमारा सीव ट्यूब खत्म हो गया. जब परफोरेटेड वॉल्स होंगी, जो परफोरेटेड वॉल का स्ट्रक्चर को हम क्या फॉर्म करेगी? सीव प्लेट्स. तो हमारा सीव ट्यूब यहाँ पर खत्म हो गया. क्या था सीव ट्यूब? ट्यूबुलर सेल्स हैविंग परफोरेटेड वॉल्स. यहाँ पर ये ट्यूबुलर सेल्स आ गई. ये ट्यूबुलर जैसा स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर को बोलेंगे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, राइट? तो दैट इज नोन एज सीव ट्यूब्स. यहाँ पर जो एंडिंग में जो परफोरेटेड वॉल्स प्रेजेंट, जैसे परफोरेटेड वॉल्स प्रेजेंट होगी, वो कैसा परफोरेटेड मतलब जैसे जैसी चीज़ जिसके अंदर बहुत सारे होल्स प्रेजेंट हो, राइट? तो यहाँ पर बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होंगे. दैट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सीव प्लेट्स. तो
तब कंपेनियन सेल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज नोन एज कंपेनियन सेल्स सिचुएटेड ऑन द साइड्स ऑफ सीव ट्यूब्स। कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं ये? ऑन द साइड्स ऑफ सीव ट्यूब्स, राइट। तो ये आ गया ऑन द साइड्स ऑफ सीव ट्यूब्स। सो दीज आर known as companion cells. These are known as companion cells, right? CC means आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है इसकी वजह से companion cells, right? They are situated on the sides of sieve tubes, right? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या है? फ्लोएम फाइबर्स इजी है, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है, सिर्फ दे आर डेड सेल्स। क्या है वो? डेड सेल्स। और फोर्थ वन इज फ्लोएम पेरेनकाइमा, राइट। फ्लोएम पेरेनकाइमा हमने पढ़ा। सीव ट्यूब हैज़ नो, यहाँ पर हमने देखा सीव ट्यूब, ये सीव ट्यूब है हमारे पास। ये तुम्हारे लिए थोड़ा बेसिक और थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन है आपके लिए फॉर द नीट, राइट। तो यहाँ पर सीव ट्यूब के पास आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, पर यहाँ पर कंपेनियन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस इज present, right? Nucleus is present. Sieve tube has no nucleus. They perform all their activities with the help of nucleus situated in the companion cells. मतलब जो सारे फंक्शन होंगे, जो उनका फंक्शन होगा सीव ट्यूब का फंक्शन, वो कौन कैरी करेगा? न्यूक्लियस किसका कैरी करेगा? जो कंपेनियन सेल्स में प्रेजेंट होगा, राइट। और वी कैन से दैट द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। मतलब कौन कंट्रोल करेगा सीव ट्यूब के फंक्शन? सारे के सारे फंक्शन, सीव ट्यूब के फंक्शन कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो करेगा, राइट। तो यहाँ पर हमने फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स पढ़े। फर्स्ट इज सीव ट्यूब, ट्यूबुलर सेल्स हैविंग परफोरेटेड वॉल्स। ये रही परफोरेटेड वॉल्स, मैंने आपको फिगर के साथ समझाया है, राइट। सेकंड वन इज कंपेनियन सेल्स, दे आर सिचुएटेड ऑन द साइड्स ऑफ सीव ट्यूब्स, राइट। एंड फ्लोएम फाइबर्स बेसिकली दे आर डेड सेल्स। एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा आपको अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर और सारे के सारे सेल्स लिविंग होंगे। सीव ट्यूब विल ऑल्सो बी लिविंग, कंपोनेंट कंपेनियन सेल्स विल बी ऑल्सो लिविंग, and phloem parenchyma will be living. But this phloem fiber is the dead cell present in the phloem. The dead cell present in the phloem. ये क्वेश्चन आ सकता है, नेम द डेड सेल विच इज प्रेजेंट इन द फ्लोएम। तो आपका आंसर क्या होगा? फ्लोएम फाइबर्स। एंड नेम द लिविंग सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द फ्लोएम। तो उसका आंसर क्या होगा? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा। यहाँ पर एक सेल डेड था, यहाँ पर एक सेल लिविंग था, यहाँ पर एक सेल डेड है, राइट। ये याद रखना है आपको। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यहाँ पर खत्म हो गया। तो हम शॉर्ट रिवीजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट वन, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? उसका डेफिनेशन आएगा तो क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, दे कोऑर्डिनेट ईच अदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये पॉइंट हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर होगा। दैट विल व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, they coordinate each other and perform a specific function, right? Second question, types of complex permanent tissue, that is xylem and phloem. Third one is difference between xylem and phloem, right? Difference between xylem and phloem, ये 2 मार्क्स में आपको आ ही सकता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझाते हैं। यहाँ पर xylem में और यहाँ पर phloem ले लेते हैं हम। xylem में क्या लिखेंगे हम? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर फ्लोएम में हम लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। दिस विल बी आवर सेकंड पॉइंट। यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या होगा? द 4 कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन फ्लोएम आर सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, राइट। ये आपको ऐसा ये फंक्शन हम लिख सकते हैं। दे हैव थिक वॉल्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड सेल्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स इन बोथ डायरेक्शन। तो ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस
कंप्लीट। वाई, अब यहाँ पर आता है वाई द जाइलम हैव थिक वॉल्स। यहाँ पर हमने पढ़ा थिक वॉल्स, तो आपको क्वेश्चन आया होगा वाई द जाइलम हैज थिक वॉल्स, बिकॉज द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। वहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, उसकी वजह से जाइलम का जो सेल वॉल होंगे दे हैव थिक। क्या होंगे उनके? सेल वॉल विल बी थिक। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब डेड सेल इन जाइलम, डेड सेल इन जाइलम कौन कौन से है? Tracheids, vessels and xylem fibers, and living cell in xylem, that is xylem parenchyma. Dead cells in phloem, that is phloem fibers, and living cells in the phloem are trachea, sieve tubes, companion cells and phloem parenchyma. Right? तो आप लोगों आप इसे नोट भी कर सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।